bond enthalpy. In case of diatomic molecule, very simple, bond enthalpy means whenever this hydrogen molecule is there, this hydrogen molecule forming into hydrogen and hydrogen, this is the bond enthalpy. Of course, here this bond enthalpy is equal to atomization also, क्योंकि atoms form है, but it is not applicable in all cases. ऐसा कुछ नहीं होगा. अभी CH में, ये मीथेन में suppose CH3 bond H is there. सर इधर भी हाइड्रोजन बन गए, इसलिए atomization? No, it is not atomization. Atomization के clear cut definition is there. Whenever it is forming from the molecules, that is the atomization. ठीक है, ये क्या होता है? बॉन्ड एंथैल्पी. Sometimes bond enthalpy and atomization it may be same. इस केस में bond enthalpy and atomization both are same. Next. So whenever multiple bonds are there, these bond energies are different होगा. Here this bond energy is EA, this bond energy is EB, this bond energy is EC, this bond energy is ED. Okay, you cannot expect that which will be more, which will be less. वो तो according to experimental data you will get it. इतना तो पता है वो different होगा. हाँ सर different क्यों होगा? हाइड्रोजन एंड कार्बन है. You can ask. So in that case I will explain you. This carbon in case of methane, that is sp3 hybridized carbon. After one hydrogen left, this is the sp2 hybridized. Okay, then again if one more hydrogen left, sp2 sp, so like that the hybridization is changing. Obviously nature is changing, bond nature is changing, so obviously the required energy to break that bond is different. So sir अभी A B C D में क्या लेना है? Whenever like this multiple bonds are there, we have to take ECH. CH bond equal EA plus EB plus EC plus ED upon 4. That means average energy gathering. Multiple times. Suppose H2O is there. H2O water है. ठीक है, to break this bond another energy, some X energy is required. Then here in forming OH, yes, H. Now again here OH bond breaking, here again energy is required. This is the EB. Then OH, already one H is there. Sub atoms हो गए. So here what is the EH bond? OH bond. OH bond energy, that means I have to take EA plus EB by 2 average. I have to take. ये दोनों में which is the higher, which is the lower means वो तो टेस्ट क्वेश्चन में देंगे. ठीक है, इतना हमको पता चला है तो डिफरेंट है बस. ठीक है, whenever multiple bonds are there like this, तो bond enthalpy वाला हो गया. Next, enthalpy of solution or solution enthalpy. See solution मतलब very simple है. अभी NaCl को dissolve किया पानी में, solution बन गया. उस टाइम में whatever heat energy releasing or receiving, that is the enthalpy of solution. आंसर ही उतना ही है, लेकिन उसमें क्या क्या involvement हो रहा है. So I am taking here water is there. In this water I am adding NaCl. ठीक है, NaCl तो ionic compound है. This ionic compound, what's happening here? Na plus plus Cl minus, right? Then immediately here hydration energy release होता है. The last class I told you NaCl is a stronger bond, even though in the water it is splitting into Na plus Cl minus. Why? ना stronger bond था, पानी में जाने के बाद immediately getting separate Na plus Cl minus. Why? उतना energy कौन दे रहे? We are not heating the compound, we are not heating the solution, even though it is splitting. Why and how?
टू ब्रेक दिस NaCl, इतना तो चार्ट के लिए भी उतना एनर्जी चाहिए, NaCl को ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतना एनर्जी कौन दे रहे? How it is getting and why it is splitting? लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया, आधा इंफॉर्मेशन इधर ही है. हाइड्रेशन एंथैल्पी. व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी? Hydrated ion. Okay. This Na plus is there. This Na plus, whenever is surrounded by the water molecule, it is forming hydrated ion. This is called hydrated ion. Whenever like this, Micelles पता है ना? Micelles formation. Soap में. Like that, एक पॉजिटिव है. वाटर में क्या होता है? डाइपोल है. Negative particle, negative side and positive side. This negative side is attracting. Negative. एक bunch जैसे formation होता है, एक ball type. Whenever the molecules are coming to closer, then some energy will be released. This energy is known as hydration enthalpy. Right. So this released hydration enthalpy is consuming to break this bond. Okay, that's the reason NaCl is dissolving. ठीक है. अभी फाइनल कंक्लूजन में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अभी वाटर है, अभी NaCl डिसॉल्व किया. वाटर का टेम्परेचर वो बढ़ेगा क्या, कम होगा? इंक्रीजिंग. से वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या होगा? वो टेम्परेचर, वो रिएक्शन क्या होगा? इफ इट इज एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर विल बी राइज. If it is exothermic, temperature will be rise. If it is endothermic, temperature will be going down. ठीक है. You can observe that ये NaCl में थोड़ा इंक्रीज होता है, उतना ऑब्जर्वेशन में थोड़ा कम होगा. एसिड डाले तो इजीली पता चलता है, पूरा कंटेनर तो हीट हो जाएगा, तो एक्सोथर्मिक है. और शुगर डिसॉल्व करेंगे तब पता चलेगा वो ठंडा हो जाता है. नॉर्मल वाटर ले लो, then after dissolving 1 teaspoon or 2 teaspoons of sugar, the water will be little bit cold. ठीक है, वो तो एंडोथर्मिक है. ये तो लिटिल बिट एक्सोथर्मिक है. बोलने के लिए एक्सोथर्मिक है, उतना एनर्जी ज्यादा नहीं रहता है. चलो, अभी इसमें क्या है? ठीक है, NaCl में एक्सोथर्मिक क्यों हुआ? मतलब टू ब्रेक दिस बॉन्ड मतलब बॉन्ड एंथैल्पी इज सपोज x. ये हाइड्रेशन एंथैल्पी है. डेल्टा H हाइड्रेशन, दिस इज y. So hydration enthalpy is more, x is smaller than the y. मतलब releasing energy little bit more than the required energy. That's why resultant little bit temperature is rising. ठीक है. Suppose AgCl is there. AgCl, silver chloride that cannot dissolve. It will get precipitation बोलते हैं. White PPT. ठीक है. उस टाइम में क्या है ये कंपाउंड का हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लेस, बॉन्ड एंथैल्पी इज मोर. ठीक है. कितना रिलीज हो रहा है? वो रिलीज्ड एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द बॉन्ड. दैट्स व्हाई AgCl cannot cleave, cannot get separate. ठीक है. अभी ये बॉन्ड एनर्जी का दूसरा नाम है आयनिक कंपाउंड्स में लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं. यही बॉन्ड एनर्जी का लैटिस एंथैल्पी. दैट इज आल्सो डेफिनेशन आई गिवन इन द क्लास. लेकिन लैटिस एंथैल्पी अगेन थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं इसमें. लैटिस एंथैल्पी, ये लैटिस एंथैल्पी मतलब नॉर्मल बॉन्ड एंथैल्पी जैसा होता है, लेकिन थोड़ा नोट पॉइंट रहता है इसमें. See, two definitions रहता है इसका. One is, see, whenever NaCl solid is forming
from their constituent ions in the gaseous state. इससे डेफिनेशन बना सकते हैं. यस, NaCl सॉलिड बन रहे हैं. कहां से बन रहे हैं? आयन से बन रहे हैं. कंडीशन क्या था? आयन शुड बी इन द gaseous state. Ions should be in the gaseous state. Two gaseous state ions, whenever combining and forming one solid substance, the releasing energy is known as lattice enthalpy. सर कितना बनना है? 1 मोल है कि 1 किलोग्राम है, 1 ग्राम है? हाँ, कभी भी जनरली हम लेते हैं 1 मोल. अभी डेफिनेशन ऐसा बोल सकते हैं, whenever a 1 mole of ionic compound is forming from their constituent ions in the gaseous state, the releasing energy is known as lattice enthalpy. ये एग्जाम्पल याद है तो इसको डिस्क्राइब करता है, बस इतना ही है. तुम्हारा डेफिनेशन मतलब इसको डिस्क्राइब करता है. फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो दैट gaseous state ions था, वो सॉलिड बन रहे, रिलीजिंग एनर्जी. इसको एक सेंटेंस फ्रेम करो. मैं यही डेफिनेशन को मैं उल्टा भी बोल सकते हैं. Whenever 1 mole of ionic compound, when 1 mole of same type of ionic bonds, same type of means NaCl, what is that? Same type of 1 mole of bonds to break and to produce a gaseous ions, the required energy, इधर से इधर है तो रिक्वायर्ड एनर्जी, इधर से उधर है तो रिलीजिंग एनर्जी. इतना ही तो डिफरेंस है. रिक्वायर्ड एनर्जी, रिलीजिंग एनर्जी. हाँ, रिप्रेजेंटेशन करने टाइम में हम क्या करते हैं? रिक्वायर्ड एनर्जी को पॉजिटिव दिखाते हैं डेल्टा एच में, इधर रिलीजिंग में नेगेटिव होता है. साइन कन्वेंशन डिफरेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होता है. ओके, अभी सॉल्यूशन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है? एक तो लैटिस एंथैल्पी इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी. अभी ये बता सकते हैं हम, एक कुछ X कंपाउंड है, XY कंपाउंड, इज इट डिसॉल्विंग इन द वाटर और नॉट? ऐसा पूछे. वो XY का कुछ पता ही नहीं इंफॉर्मेशन, लेकिन XY में इंफॉर्मेशन इतना दिया था, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द 1000 and lattice enthalpy is 999. Now this solution, this compound XY, is it dissolved in the water or not? वो dissolve हो सकता है कि नहीं है? नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि required hydration energy dissolve होता है कि नहीं? नहीं होगा. ये हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब क्या है? रिलीजिंग एनर्जी या रिक्वायर्ड एनर्जी? इट इज रिलीजिंग एनर्जी. हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब रिलीजिंग एनर्जी. लैटिस एंथैल्पी रिक्वायर्ड एनर्जी. कौन कम है? रिक्वायर्ड कम है, रिलीजिंग ज्यादा है, तो डिसॉल्व होगा ना. हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब ये होता है, हाइड्रेशन ये इस टाइम में रिलीजिंग एनर्जी. हाइड्रेशन एंथैल्पी कभी भी रिलीजिंग एनर्जी होता है. लैटिस एंथैल्पी रिक्वायर्ड. ओके, सो लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी में, सपोज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर, देन इट विल बी डिसॉल्व. इफ a lattice enthalpy is more, those salts cannot dissolve. समझ गए? लैटिस एंथैल्पी मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, उतना तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए. उतना एनर्जी हाइड्रेशन वाला देते तो ठीक है, नहीं देते तो फिर डिसॉल्व नहीं होगा. इतना तो क्लियर है सबको? चलो, बॉन्ड एंथैल्पी एंड सॉल्यूशन एंथैल्पी को दो टॉपिक के अंदर, टॉपिक ये समझ एक्सप्लेन यू. रिमेनिंग तो मैक्सिमम डायरेक्ट डेफिनेशन से.
system X and Y is reacting and forming XY. ठीक है, हमको इंफॉर्मेशन ये दिया था इधर, फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया है, फॉर्मेशन एंथैल्पी, here also formation enthalpy given. ठीक है, now in this reaction how much reaction enthalpy you have to calculate. Reaction enthalpy you have to calculate. What formula you will use? That is the reaction enthalpy मतलब क्या है? In this reaction, how much heat energy exchange? Either it is lose or gain. We don't know. You have to calculate. अभी formula कैसे use करेंगे? Now you will write two probabilities है. एक तो डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट लिख सकते हैं. एक तो डेल्टा H रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H प्रोडक्ट. Which will be the correct answer होगा? See, formation enthalpy. Formation enthalpy मतलब क्या होता है उस टाइम में? Whenever this x2 and y2 कहाँ से फॉर्मेशन हो गया? मे बी x plus x से x2 बन गया, y and y से y2 बन गया. In this case, whatever heat energy generating, that is the formation enthalpy. Suppose 1000 formation enthalpy. इधर वो formation enthalpy है मे बी 500 formation enthalpy. Formation enthalpy 500. ठीक है. So 500 formation enthalpy, right? अभी which formula you will use? First one or second one? Suppose we will use first one. Product minus reactant, minus 500 minus half minus 1000. Then what is our answer? Plus 500. ठीक है. सेकंड केस में क्या होगा? वही सेम आंसर आएंगे, हमको माइनस 500 आएंगे, बस इतना ही डिफरेंस. सो विच विल बी द करेक्ट आंसर? देखो ये फॉर्मेशन एंथैल्पी माइनस 1000 का. अभी ये बनने के पहले ये तो ब्रेकअप होना चाहिए पहले. x x शुड बी ब्रेकअप, मतलब इधर से इधर जाने के पहले कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इसका? सेम 1000 रिक्वायर्ड होगा, 1000 रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, 1000 रिक्वायर्ड है. While it is forming 500 releasing, बस इतना ही. So releasing minus 500 required plus 1000. So that means resultant क्या हो गया? Plus 500. मतलब ये क्या है? Required energy. Required energy डेल्टा H में पॉजिटिव साइन होता है क्या नेगेटिव साइन होता है? एक रिएक्शन ले रहे एनर्जी, दैट सिंबल इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव. रिएक्शन बाहर छोड़े तो नेगेटिव है क्योंकि रिएक्शन नुकसान हो रहा है. रिएक्शन गेनिंग एनर्जी मींस पॉजिटिव. सो हमको आ गया प्लस 500. प्लस 500 कहां हो गया? सो अवर फार्मूला क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होना चाहिए. ठीक है, क्यों ऐसा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ले रहे हैं? मतलब विद एग्जांपल आई एक्सप्लेन किया, क्योंकि कुछ दूसरा फार्मूलास में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखना पड़ता है. दैट्स व्हाई यू शुड नॉट कंफ्यूज लेटर. ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो ऐसे एक एग्जांपल लेके हम चेक कर सकते. ठीक है, कभी भी फॉर्मेशन बोल रहे मतलब वो ब्रेक होने के लिए भी उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. मैं NaCl केस में बताया, मैं लैटिस एंथैल्पी में NaCl एक मोल फॉर्मेशन के लिए कितना एनर्जी रिलीज होता है, ब्रेक करने के लिए उतना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है. क्वांटिटी तो सेम है, साइन कन्वेंशन डिफरेंट. ठीक है, अभी हमको बॉन्ड एनर्जी दिया है. अभी बॉन्ड एनर्जी फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं है, बॉन्ड एनर्जी दिया है. बॉन्ड एनर्जी क्या है? वो XX बॉन्ड एनर्जी इज गिवन, YY bond energy is given, then XY bond energy is given. Now they are asking you find the delta RH, means reaction enthalpy you have to calculate. अभी इस टाइम में हम क्या करना है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है. देखो
सी इसमें उसके पहले एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज और एनर्जी रिलीज माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड, विच फार्मूला इज सुटेबल? रिलीज माइनस रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड माइनस रिलीज, ये तो ये थियोरेटिकली पता चला। रिक्वायर्ड माइनस रिलीज और रिलीज माइनस रिक्वायर्ड, सेम एग्जांपल इसमें। रिक्वायर्ड कितना बोला था? 1000 रिक्वायर्ड, रिलीज कितना हो रहा है? -500। एक बार सब्स्टिट्यूट करें इसमें, फर्स्ट फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करें। रिक्वायर्ड कितना था? 1000 माइनस रिलीज में माइनस और माइनस हो रहा है, ठीक है। सपोज रिलीज्ड माइनस रिक्वायर्ड है तो रिलीज माइनस रिक्वायर्ड माइनस 500। सी which quantity is more here? Required is more. Required is more. So released कम है, required ज्यादा है, मतलब still the finally reaction is gaining energy. Gaining energy मतलब क्या होना चाहिए? पॉजिटिव आंसर आना चाहिए हमको। किस केस में पॉजिटिव आंसर आ रहा है? फर्स्ट केस में हमको पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना? क्यों समझ गए ना क्यों पॉजिटिव आना चाहिए? रिक्वायर्ड ज्यादा है, रिलीज कम हो रहा है, मतलब स्टिल द रिएक्शन इज गेन्ड समथिंग, ठीक है। हमको डेल्टा एच वैल्यू होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। और पॉजिटिव किस केस में आ रहे हैं? रिक्वायर्ड माइनस रिलीज, ठीक है। अभी एक्चुअली वो रिक्वायर्ड और रिलीज नहीं दिया है आंसर क्वेश्चन में, ये क्या दिया है? बॉन्ड एनर्जी दिया है, बॉन्ड एनर्जी दी है। सो बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज गिवन। सो रिक्वायर्ड मतलब वो प्रोडक्ट केस में रिक्वायर्ड होता है कि रिएक्टेंट में रिक्वायर्ड होता है? कहां रिक्वायर्ड होता है? ये रिएक्शन इधर से उधर चल रहा है, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड जनरली कहां होता है? रिएक्टेंट में होता है, क्योंकि ये बॉन्ड्स ब्रेक होना चाहिए, उधर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। व्हेन बॉन्ड इज ब्रेकिंग तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। सो फाइनली कंक्लूजन ये है, सो एनर्जी रिक्वायर्ड मींस हियर डेल्टा एच रिएक्टेंट्स माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट्स। ये मैं इतना स्टोरी इसलिए बताया था, वो फार्मूला में ये डिफरेंट होता है। सपोज इफ यू आर नॉट गेटिंग ऑल दीज स्टफ तो डायरेक्टली फार्मूला भी याद रख सकते। फार्मूला में क्या है? बॉन्ड एनर्जी देते तो व्हेनेवर दीज आर द बॉन्ड एनर्जीज, बॉन्ड एनर्जी देते तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, डायरेक्ट फॉर्मेशन एंथैल्पी देते तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, ठीक है। दैट इज इट। I will give 1-2 questions, then it will. So bond energy is given, so this formula you can use, right? Reactant. Reactant क्या है? H2 plus Cl2. H2 का कितना था? 433 प्लस क्लोरीन का 244। ये तो इतना रिक्वायर्ड एनर्जी, इनडायरेक्टली यू कैन राइट हियर रिक्वायर्ड, ये तो जरूरत नहीं लिखने का, हमको तो पता चला। प्रोडक्ट में रिलीज हो रहा है कितना? HCl का 431 रिलीज हो रहा है, लेकिन एक मोल के लिए 431 है, इधर 2 मोल्स है, इसलिए हम क्या करना है? इंटू 2 करना है। 185 माइनस 185। मैं कुछ स्टेप्स लिखता हूँ, उसमें कुछ कंफ्यूज हो गया फिर कहाँ मिस्टेक किया चेक करो। इसमें डेल्टा एच आर तो पूछा है, जनरली रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, दैट इंप्लाइज रिएक्टेंट क्या है? C3H8, हम लोग C3H8 से बता दें, दिया ही नहीं। Then in that case you have to write the structure C3H8, all are hydrogens, right? C3H8 में क्या क्या लिखना है? अभी मैं एक 1 CC बॉन्ड, सॉरी 2 CC बॉन्ड्स, 2 CC बॉन्ड्स, CH बॉन्ड्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8 CH बॉन्ड्स
एक कंपाउंड हो गया, प्लस ऑक्सीजन कैसे रहता है, वो डबल बॉन्ड O प्लस एक मोल्स कितना है 5 into C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये कितना रिएक्टेंट का हो गया माइनस प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सर ऑक्सीजन डबल O डबल सॉरी O डबल बॉन्ड, राइट। अभी कार्बन डाइऑक्साइड में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये 3 मोल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 into एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 C डबल बॉन्ड O आर देयर, मतलब 2 into C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इतना तक कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, प्लस 4 OH, H2O में कितना रहता है 2 रहता है, ऑलरेडी 8 4 है, 4 into 2 into OH, मतलब मैं सीधा लिख रहा है 8 into OH। If you written like this or somewhere where you did the mistake, once you check it, ऐसा करें तो फिर आंसर आएगा बराबर आंसर। 2 into C कितना है 2 into 347 प्लस 8 into CH मतलब 414 प्लस 5 into 498 ये पूरा एक रिएक्शन हो गया, माइनस 3 into 6 into C डबल बॉन्ड 741 ये पूरा मल्टीप्लिकेशन, प्लस 8 into OH 8 into 464, ये तो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेट करके एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, yes we will get answer minus 64. Okay, this will be the answer, later you can check it. Now third question ये पूछ रहा है इधर 2 moles of carbon is forming into 2 moles of carbon, this is graphite reacting with 3 moles of hydrogen forming ethane। उस टाइम में रिएक्शन एंथैल्पी क्या है, एनर्जी चेंजेस तो दे दिया, ग्राफाइट को गैसेस फॉर्म में क्या होता है वो भी दे दिया, हाइड्रोजन एटमाइजेशन भी दे दिया, CH बॉन्ड एनर्जी भी दे दिया। क्वेश्चन में ये पूछ रहे CC बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, CC बॉन्ड एनर्जी कहाँ है, CC बॉन्ड इसके अंदर है, C2H6 में ऐसे स्ट्रक्चर है तो दिस इज द C2H6, ये बॉन्ड एनर्जी का पूछ रहे क्वेश्चन। तुमको कितना पूरा चाहिए, सब इंफॉर्मेशन दे दिया, बस वो इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके हम वो खींचना है आंसर, ठीक है। देखो whenever like this equations are there, थोड़ा मैथमेटिक्स जैसा हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया चलेगा। हमको ये पूछ रहे CC बॉन्ड एनर्जी पूछ रहे, राइट, कहाँ है वो C2H6 टाइम में, इफ यू ब्रेक इट ऑल बॉन्ड्स क्या बनेगा, कार्बन कार्बन 2 कार्बन बनेगा, 6 हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। इस टाइम में कितना बॉन्ड्स है इधर 1 2 3 4 5 6 CH बॉन्ड्स प्लस 1 CC बॉन्ड है। ये टाइम में इफ यू नो हियर डेल्टा H वैल्यू, ठीक है, इट इज द सम ऑफ 1 CC बॉन्ड प्लस 6 CH बॉन्ड। CH तो आंसर क्वेश्चन में दे दिया है, हमको CC तो मिलेगा, मतलब फाइनली ये रिएक्शन का एंथैल्पी कैलकुलेट करना है हम, दिस इज अवर टारगेट। टारगेट अभी ये है, ये सॉल्व करें तो कुछ x वैल्यू आंसर आएंगे, दैट आंसर इज नथिंग बट 6CH प्लस 1 CC। 6CH का ऑलरेडी तो दे दिया है क्वेश्चन में, तो 1 CC तो मिलेगा। इतना तक क्लियर है, फर्स्ट स्टेप टारगेट समझ गए। टारगेट हमको एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा था CC, हम तो अब सॉल्व करेंगे ये रिएक्शन एटमाइजेशन का सॉल्व करेंगे। चलो
तो ये क्या है, ठीक है, ये एटमाइजेशन से देखो ये रिएक्शन है ना, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, ये 3 रिएक्शन को तुम कुछ भी करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, ये रिएक्शंस यूज करके ये रिएक्शन आना चाहिए। जनरली 2D में कुछ मैथमेटिक्स में करते हैं ना, दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सो लाइक दैट। देखो हमको रिएक्टेंट में C2H6 चाहिए, मेरे को प्रोडक्ट में है, तो ये रिएक्शन को क्या लिखता हूं मैं, उल्टा लिखता हूं। उल्टा लिखे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना। ये रिएक्शन में 84.67 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीजिंग, मैं उल्टा लिखे तो वो इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन आई एम राइटिंग सेम रिएक्शन को, C2H6 gives rise to 2 carbon plus 3 H2, then the delta H value will be plus 84.67। मेरे को ये चाहिए था, मिल गया। प्रोडक्ट में चाहिए 2 कार्बन्स है, इधर 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन मेरे पास 3 हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन का है ये, मेरे को कितना चाहिए, 6 चाहिए, 6 चाहिए, 3H2 3H2, तो मेरे को चाहिए 6 हाइड्रोजन, लेकिन तो H2 है, ये नहीं चाहिए मेरे को, तो हाइड्रोजन चाहिए। दूसरा रिएक्शन मैं ये यूज करता हूँ, ये रिएक्शन में H2 plus 2H is there, ठीक है, मेरे को 6H चाहिए, तो ये पूरा रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, then do it, 3H2 gives rise 6H, then वैल्यू को भी करना पड़ेगा, डेल्टा H इक्वल 3 से मल्टीप्लाई करो, 27, 15 means 2, 7, 13, 1305, 1305.7, अच्छा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चलो अभी C2H6 तो हो गया, 2 कार्बन तो हो गया, 6 हाइड्रोजन तो हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका माइनस करो, इक्वेशन को माइनस करें तो माइनस भी करने की जरूरत नहीं, ये तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम है, तो कैंसिल होता है सीधा, 3H2 गेट कैंसिल, 3H2 get cancelled, then C2H6 is gives rise to C plus 6H, ठीक है। लेकिन हम ये यूज नहीं कर रहे, तो ये यूज करना है। ये क्या था, ये गैस, लेकिन तो ग्राफाइट है, ये ग्राफाइट को गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी सेकंड इक्वेशन को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो और एक इक्वेशन आएगी इधर, 2 ग्राफाइट Gr is not gas, it is graphite, 2 graphite is gives rise to 2C, it is only gas, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया मैं, 4, 6, 12, 13, 3, 14 133.4, इतना समझ गया है तुमको सबको। मेरा टारगेट था ये इक्वेशन बनाना, ठीक है। ये 3 इक्वेशन को यूटिलाइज किया, एक इक्वेशन को पहले उल्टा लिखा था, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। रिमेनिंग तो हाइड्रोजन चाहिए था, इधर H2 था, इसलिए तो H2 वाला भी इक्वेशन लिया। सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देते, हमको यूटिलाइज करने का आना चाहिए, बस इतना ही है, ठीक है। अभी H2 गेट कैंसिल, 2 ग्राफाइट गेट कैंसिल, ठीक है। हमको ये इक्वेशन आ गया, जनरली तो नीचे लिखना है, मैं ऊपर देख रहा हूं। C2H6 मतलब C2H6 प्रोडक्ट में एक 6H, यस, 2 कार्बन, राइट। आगे अभी हम क्या किया, इसमें माइनस किया क्या प्लस किया? प्लस किया, आप बस तो प्लस करो,
delta H equal add 84, 1300 and 1400, 2700, 2738 plus 84, 2700 is 2800, 2800 change होगा 2825.7 एक्यूरेट करेगा, इसमें भी कुछ फ्रैक्शन एक बार चेक कर सकते 2825.7 is the correct answer. इतना तक हो गया. Now this value is nothing but 1 2 3 4 5 6 CH bonds plus 1 CC bond का total is 2825.7. CH का bond energy तो दे दिया ऑलरेडी 6 into 416 plus CC equal 2825.7, then CC equal 2825.7 minus 2496, approximately 2500 समझो 2500 मतलब 320 होगा 320 लगे. Yes, good. समझ गया. अगर इक्वेशन फॉर्म में देते तो ऐसा करना है. कभी क्वेश्चन में इक्वेशन फॉर्म में नहीं देते, थियोरेटिकली देते, पहले इक्वेशन बनाओ. फ्रॉम दैट इक्वेशंस हमारा टारगेट क्या है, पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई टारगेट को डिराइव करना है, सॉल्व करना है. इतना तो पूरा क्वेश्चन ही था. A thermochemical equation either it takes place in one step, or in multiple steps. Either it takes place in one step or in multiple steps. The heat of change in enthalpy is same. The heat of change in enthalpy is same. See here is the path 1. It is the path 2. A to B formation हो रहा है. So in case of A to B here delta H path 1 equal to delta H path 2. और रिएक्शन उधर से इधर से आ गया, एक इंटरमीडिएट बन के आ गया, तब भी हीट एनर्जी एंथैल्पी चेंज तो सेम ही होगा, उधर से इधर भी सेम. एंथैल्पी तो क्या है, वो स्टेट फंक्शन था. स्टेट फंक्शन क्या है, कहाँ से घूम के आओ तो उससे कुछ लेना देना नहीं. फाइनल माइनस इनिशियल इतना ही. ठीक है, टुमारो वी विल डिस्कस